Hello students. So now we are going to start new class organic chemistry. So what is the topic today? We will discuss about the nomenclature. तो IUPAC nomenclature of unsaturated compound. तो उससे पहले आपके लिए एक लाइन है, सक्सेस की ये खास बात है कि वे मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है. समझ में आया? सक्सेस की ये खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है. तो आज इसी के साथ हम अपनी न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी. तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, आई विल गिव यू आंसर. ओके. तो नाउ टुडेज टॉपिक is IUPAC nomenclature, continuation of the topic IUPAC nomenclature. I already told you this topic is very important up to PG level. So IUPAC nomenclature के कुछ rules हैं. तो unsaturated hydrocarbon. तो now we will discuss the unsaturated hydrocarbons. What is the meaning of unsaturated hydrocarbon? Unsaturated hydrocarbon का मतलब क्या होगा? Those contain double bond, carbon-carbon double bond, and those compound contain carbon-carbon triple bond. These are called unsaturated. Oil is unsaturated, and butter, makhan, this is saturated. Okay. So now unsaturated hydrocarbon again divided into two types. First क्या होगा बेटा? First is alkene. एल्केन हम डिस्कस कर चुके हैं. सैचुरेटेड होता है एल्केन, हाइड्रोकार्बन है, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. एंड सेकंड क्या होगा? एल्काइन. तो नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन? CnH2n. एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन? CnH2n minus 2. Clear? The value of n will be 2, 3, 4, 5, so on. So we take an example like C2, 2 into 2, 4, C2H4. Now this is called ethene. And in CnH2n minus 2, put the value of 2, C2H2. Now what is the structure? CH triple bond CH. So how many bond formed by the carbon? 4 bond. 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. Hydrogen only form 1 bond. So alkene. Alkene is also called olefin. इन्हें हम olefins भी कहते हैं. Olefins. Because lower members of the alkene react with chlorine and form the oily product. So these are called the olefiants. So lower members, alkene, like ethene, propene, they react with chlorine and form the oily product. So these are called the olefins. So now clear? Alkene and alkyne. So now we will discuss some points, some example of alkene and alkyne. So now make a table and write the point. Now next. So we will make two tables, one for alkene and one for alkyne. So now we will make the table for alkene. First, structure,
now IUPAC name and its common name. Okay, तो first example I already told you the suffix of alkene is suffix. बेटा क्या लगाएंगे alkene में, आपको suffix की जरूरत पड़ेगी. What is the suffix here? Suffix मतलब जो हम लास्ट में लगाते हैं, वर्ड रूट के बाद लगाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इन. तो वर्ड रूट में से यूज में लेंगे एल्कीन. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम एंड कॉमन नेम? फर्स्ट एथाइन वी विल ऑलरेडी डिस्कस. CH2 डबल बॉन्ड CH2. व्हाट इज इट्स आईपीसी नेम? आईपीसी नेम क्या होगा इसका? एथीन. दिस इज कॉल्ड एथीन. And common name, what is the common name? Ethylene. Now clear? Second, CH3C double bond CH2 and satisfied with hydrogen. 1 2 3. 1 2 3. So position is not mentioned in up to 3 carbon. 3 carbon तक हमें position mention नहीं करनी है. So its name is propene. ene is the suffix. Clear? ane replaced by ene. alkene में हम ane लगाते थे और alkene में हम ene लगाएंगे. So CH3CH double bond CH2. हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3. 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप. और नाम क्या हो गया? प्रोपीन. और आईपीसी नेम क्या होगा? सॉरी, कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपाइलीन. सो वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. नाउ पोजिशन इज मेंशन हियर. यहाँ हमें पोजिशन मेंशन करनी होगी बेटा. क्यों? क्योंकि देर इज 4 कार्बन. यहाँ पे कितने कार्बन है? 4. तो 1 2 3 4. सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन इन कंटिन्यूटी. कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है. नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे? लॉक एंड रूल. लोएस्ट होना चाहिए. इट मीन्स पोजीशन सबसे कम नंबर मिलना चाहिए इसे. तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. तो 1 2 3 4. तो इसका नाम क्या होगा? 1 पोजीशन पर है तो आपको 1 लगाना है. ओके, यू कैन राइट 1 ब्यूटीन. अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस, ब्यूट 1 इन. तो ब्यूट 1 इन. तो you can write ब्यूट 1 इन. And this is called is carbon alpha, beta, then gamma, then delta, and so on omega. तो what is the now name? Name क्या होगा इसका? IPC common name is alpha butylene. Alpha, जैसे आपने प्रोपाइलिन लिखा तो आप क्या लिखेंगे? हम alpha butylene. सॉरी, ब्यूटीलीन. alpha butylene. अल्फा ब्यूटीलीन. क्लियर? प्रोपिलीन, ब्यूटीलीन. तो अल्फा ब्यूटीलीन. नाउ नेक्स्ट इफ वी टेक एन इफ वी चेंज द पोजीशन. अगर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3. आपको केवल ये याद रखना है, कार्बन के जो बॉन्ड होंगे वो 4 होंगे. तो टर्मिनल है ये, तो CH3 होगा टर्मिनल. तो काउंट हमेशा काउंट करें जिससे कभी मिस्टेक नहीं होगी. तो हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो. आप नंबरिंग वी कैन डू नंबरिंग फ्रॉम स्टार्ट 1 2 3 4. आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी. बहुत पोजीशन इज इक्वल. तो 1 2 पोजीशन को आप क्या लिखोगे बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ब्यूट 2 इन. वेरी सिंपल. And what is the position now? Alpha beta. So this is called beta butylene. Beta butylene.
beta-butylene. Now write down these examples. We will discuss the next example. Have you written? So now let's see the next example. We can take more examples. So 4 carbon here. If we take 5 carbon, so how to write the name? Let's see. Suppose we take an 5 carbon as example. Now fourth example. So what is the carbon atom? 5 carbon atom. CH3, CH2, CH2, CH double bond CH2. Now what is its name? 1, 2, 3, 4, 5. अब आप नंबरिंग कर सकते हैं. लेफ्ट साइड क्यों किया बताओ? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पास में है, और डबल बॉन्ड अगर क्लोज में होगा उसको कम नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट. इस रूल को हम कहते हैं लोकेंट रूल. लोकेंट मीन्स पोजीशन. यहाँ हमें पोजीशन पता लगती है. तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या नाम होगा बेटा? 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं. तो वेरी इजी, पेंट, एंड पोजीशन इज 1. तो 1 in. It's clear? So pant 1 in. You can try. Now next, what is the common name? Alpha pentylene. Alpha pentylene. Now next example you can write CH3, CH2, CH double bond CH and CH3. So now what is the name? Again 1, 2, 3. यहाँ से आप नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 3 पोजीशन आ रही है. 1, 2, यहाँ से 2 पोजीशन. तो लॉक एंड रोल 1, 2, 3, 4, 5. I think is clear. So what is its name? Pant 2 in. What is its name? Pant 2 in. Very good. तो pant 2 in. Now what is the common name? अब common name तो आप इजीली बता सकते हैं. क्या होगा बेटा? Let's see. Alpha first position, beta, then gamma, delta, omega. तो pant 2 in को हम क्या लिख सकते हैं? बीटा पेंटिलीन. बीटा पेंटिलीन. So it's clear how to write the name beta pentylene. So now next list we will make the next list for alkyne. अब हम alkyne के लिए एक लिस्ट बनाएंगे. So write down the next table for alkyne. Can you tell me the suffix? alkyne का suffix बता सकते हैं बेटा? आप बोले what is the suffix for alkyne? एल्काइन का जो सफिक्स होगा वो होगा वाइन. YNE. दिस इज यूज्ड फॉर एल्काइन. नाउ एल्काइन फर्स्ट एग्जांपल वी ऑलरेडी लर्न. कौन सा फर्स्ट मेंबर आपसे पूछा जाए? व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन? एसिटिलीन. सेकंड मेंबर इज प्रोपाइन. थर्ड मेंबर इज ब्यूटाइन. ओके, तो फर्स्ट मेंबर इज एसिटिलीन. आईपीसी नेम इथाइन. 2 कार्बन एथ होता है. क्या लगाओगे? एन हटाकर रिप्लेस कर दो एन को वाइन. आइन. YNE. आइन. इथाइन. क्लियर? सफिक्स क्या लगाया बेटा? आइन. नाउ प्रैक्टिस अगेन. अब इसका हमें कॉमन नेम बताना है. कॉमन नेम क्या होगा? सबसे ज्यादा यूज में आती है ये गैस एसिटिलीन. वेल्डिंग आपने देखी होगी, वेल्डिंग की गैस रहती है, वेल्डिंग गैस. सो इट्स नेम इज एसिटिलीन. ये इसी नाम से जानी जाती है, एसिटिलीन. सो नाउ वी टेक एन अनदर एग्जांपल. अब आप क्या करेंगे? H को रिप्लेस करते जाएं. आप एग्जांपल खुद सेल्फ भी बना सकते हैं. आप HH रिप्लेस करते जाएं. CH3 लगा दें, CH3 CH2 लगा दें. तो देखो हमने एक H को रिप्लेस कर दिया. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. H रिप्लेस हो गया सपोज CH3 से, और एज इट इज
बॉन्ड बना दें, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गई न्यू स्ट्रक्चर, न्यू कंपाउंड। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। अब 1 2 3 या नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है, पोजीशन को हमें इंडिकेट ही नहीं करना, क्योंकि केवल 3 कार्बन है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। सो व्हाट्स इट्स नेम? प्रोपाइन। व्हाट इज इट्स नेम? प्रोपाइन। प्रोपाइन क्यों लिखा है? आइन तो सफिक्स है, प्रोप इसलिए 1 2 3 कार्बन है, सो प्रोपाइन। अब इसका आपको कॉमन नेम बताना है। अब ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन का डेरिवेटिव है, इसे हम डेरिवेटिव नेम भी कह सकते हैं, डिराइव्ड नेम। तो डिराइव्ड नेम हम किससे दे रहे हैं? एसिटिलीन से। देखो ये आपका हुआ एसिटिलीन। ओके, अब आप सब्स्टिट्यूएंट पहचाने, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? विच एल्काइल ग्रुप? एल्काइल ग्रुप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एल्केन में से अगर हम H रिप्लेस कर देते हैं, एक H कम कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्काइल। मीथेन में से H रिप्लेस किया तो मिथाइल बन गया। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बेटा? मिथाइल। अब आपको इजी होगा कॉमन नेम बनाना। एसिटिलीन इसका डेरिवेटिव है, पेरेंट क्यों है? एसिटिलीन, तो नाम क्या बन गया इसका? मिथाइल, मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। ओके, नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल। आप अनदर एग्जांपल देखो कैसे बनाओगे। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, लिख लिख के याद करें, जरूर याद होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिलीव मी एंड बिलीव योरसेल्फ। सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल बेटा। दूसरा एग्जांपल अब हम क्या बनाते हैं, देखिए। अब एक H को आपने रिप्लेस कर दिया, C ट्रिपल बॉन्ड C। कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, कीपिंग इन माइंड। एंड ये H भी रिप्लेस कर दिया सपोज हमने CH3 से। क्या बन गया बता सकते हो? अब आप 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं से भी नंबरिंग करो, इट्स सिमिलर। तो सपोज हमने नंबरिंग यहाँ से कर दी, राइट साइड 1 2 3 4। यू कैन राइट 1 2 3 4, देयर इज नो इशू। आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो। Are you getting my point? Tell me yes or no. 1 2 3 4, how many carbon? 4। 4 कार्बन को अब आप स्मार्ट हो गए, बताएंगे 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और आपको क्या लगाना है? YINE, YNE, आइन। सो राइट नेम ब्यूट। वेरी गुड। आप लिखें मेरे साथ। 2 पोजीशन है, लोकेंट पोजीशन क्या होगी? 2। तो आप क्या लिखोगे? 2 and then ine. Now it's clear. And can you tell me about the common name? कॉमन नेम के बारे में बता सकते हो आप मुझे, क्या होगा इसका कॉमन नेम? फिर देखो सेलेक्ट करो, सिंपल सी बात है। ये हमारा क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन था, एक H इधर से हटा, एक H इधर से हटा, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH3 आ गया। कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2। 2 को क्या लिखेंगे? डाई। क्लियर? 2 को हम लिखते हैं डाई। और क्या बन गया? एसिटिलीन। अब डाई मिथाइल एसिटिलीन, वेरी सिंपल नाम, डाई मिथाइल एसिटिलीन। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल acetylene. So this nomenclature is very important for your competition exam also. And CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ भी तो लगा सकते हैं हम। फर्स्ट पोजीशन पर लगा के देखें क्या बनता है अभी। चलो लगा के देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर अब हम इसे शिफ्ट कर देते हैं। अब इसको फर्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ CH2 लगाएंगे, यहाँ आपको C ही रखना है क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। ये बन गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया H। अब यू कैन इमेजिन 1 2 3 4, 1 2 देयर इज ऑल आर सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। तो नाउ स्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग स्टार्ट करें विद मी, नंबरिंग विद मी 1 2 3 4। ओके, क्लियर हुआ बेटा? अब इसका नाम बताओ आप मुझे, क्या नाम होगा? इट्स क्लियर? तो 1 2 3 4, लेट्स सी व्हाट इज इट्स नेम? ब्यूट। अगेन वी हैव टू राइट ब्यूट। एंड पोजीशन इज, पोजीशन आप बताएंगे आइन, ब्यूट 1 आइन। एंड IPC नेम इज
आईपीसी नेम इज ब्यूट 1-ine। कॉमन नेम बता सकते हो? देखो कॉमन नेम बिल्कुल बताओगे, आपको आ गया समझ में सभी को? कॉमन नेम लिखना वेरी इजी है। ये आपका एसिटिलीन हो गया। अब इस ग्रुप को पहचान लो, कौन सा एल्काइल ग्रुप है? C2H5 है, 1-2 कार्बन, 3-2 कार्बन, सॉरी 3-2 हाइड्रोजन। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये? इथाइल। तो क्या नाम होगा बेटा इसका? इथाइल का क्या नाम लिखेंगे आप? इथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन। Now it's clear. So how to write the name and how to indicate the position. So this is called the ethyl acetylene. There are many example. Suppose we take another example. एक example और मैं solve करा देती हूँ, आगे आप practice करें। Suppose आपने लिया C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ तो हमने लगा दिया CH3 और यहाँ हम अटैच कर रहे हैं CH2 CH3। हैव यू रिटन ऑल एग्जाम्पल्स? आप ये सभी एग्जाम्पल नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब हमने एक और एग्जाम्पल बनाया। अब देखो अगेन आइडेंटिफाई द पोजीशन। सबसे पहले तो आपको वही काम करना है भाई, लॉन्ग सेलेक्ट कर लेंगे, लॉन्ग चेन सेलेक्ट 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 5। व्हाट इज द नेम? यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पोजीशन होगी और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पोजीशन। ये पहचानो, ग्रुप पहचान में आ गया, सभी को आइडेंटिफाई कर लिया। एसिटिलीन है। कॉमन नेम तो बता सकते हो, मिथाइल और इथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ई। तो आप कॉमन नेम क्या लिखेंगे इसका? इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और आगे क्या लिखना है कंटिन्यूटी में? एसिटिलीन। डोंट लेफ्ट द गैप, आपको गैप नहीं छोड़ना, कंटिन्यूटी में लिखना है। तो इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। नाउ आई रब द सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ पॉइंट। राइट डाउन इट्स आईपीसी नेम। अब आप इसका आईपीसी नेम बताएं, क्या होगा बेटा आईपीसी नेम? ट्राई टू राइट योरसेल्फ, अपने आप लिखने की कोशिश करें। व्हाट इज इट्स आईपीसी नेम? आईपीसी नेम भी आप बता देंगे। 1 2 3 4 5 5 पोजीशन है, ठीक है। और इसका आईपीसी नाम क्या होगा? पेंट। चेक करो आपने सही लिखा है गलत। पेंट, पेंट हो गया 5 कार्बन। पोजीशन इंडिकेट करो, पोजीशन कौन सी है? 2 पोजीशन है, लॉक एंड रूल 2। तो आपको क्या लिखना होगा? पेंट 2-ine, पेंट 2-ine। एंड कॉमन नेम ethyl methyl acetylene. Now it's clear. So IPC nomenclature of alkyne and alkene is complete. Now there is some rules, so we will discuss for some rules for the nomenclature. रूल आपके वही होंगे, सेम रूल है जैसा हमने एल्केन में पढ़ा था। सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है आपका? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फर्स्ट रूल क्या होगा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो देयर आर सम रूल्स। फर्स्ट रूल, क्लियर? सेलेक्ट कंटिन्यूअस, सेलेक्ट कंटिन्यूअस, सेलेक्ट कंटिन्यूअस लॉन्ग कार्बन, लॉन्ग कार्बन चेन। ओके। अब कई बार सपोज करो ऐसा भी होता है डबल बॉन्ड अगर आपका लॉन्ग चेन में प्रेजेंट नहीं है तो हमें शॉर्ट चेन भी सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो वी विल टेक एन एग्जांपल लाइक CH3 CH2 नेक्स्ट, एंड वी टेक एन एग्जांपल CH2, ये एग्जाम्पल आप लिख लें, एंड CH2 C डबल बॉन्ड CH2, देन CH2 एंड CH3। तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड, you can write
this example again CH2. So now write. So how many carbon in 1 2 3 and 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन लॉन्ग चेन में होंगे, बट देर इज नो डबल बॉन्ड, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो आपको कौन सी सेलेक्ट करनी पड़ेगी? कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे। विच कार्बन चेन वी हैव टू सेलेक्ट? दिस कार्बन चेन, continuous long carbon chain 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन लॉन्ग चेन में है, बट देर इज नो डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देनी है? सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्ग चेन, बट इफ देर इज फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। आपके चेन में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सो आपको ये चेन सेलेक्ट करनी होगी। तो इसके आईपीसी नेम आप बता सकते हैं। 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 एंड 5। तो क्या लिखोगे बेटा इसका नाम? 2 इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट आप पहचान ले, क्या नाम है सब्स्टिट्यूएंट का? व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? 2 इथाइल। ओके, एंड हाउ मेनी कार्बन हियर? 1 2 3 4 5 5 कार्बन, एंड यू हैव टू इंडिकेट द पोजीशन ऑल्सो। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी हमें बतानी है। 2 इथाइल पेंट, 2 इथाइल पेंट क्लियर, 1 इन। सो फर्स्ट रूल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड रूल। व्हाट इज द सेकेंड रूल? अब आप सेकेंड रूल देखें। सेकेंड रूल क्या होगा बेटा? सेकेंड रूल में इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है एट द इक्वल पोजीशन, तो आप किसी को प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इफ बोथ आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड सी, double bond CH3. Now satisfied with the hydrogen? So 1 2 3, there is 4, there is also 1 2 3 4, and here write H. So now let's see, 1 2 position, 1 2 position। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपका इक्वल पोजीशन पर है, तो आप क्या करेंगे? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट एट द इक्वल पोजीशन, तो हमें प्रेफरेंस किसे देना है? 1 2 3 4 5 6, किसे प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड को। क्लियर? तो आपको किसे प्रेफरेंस देना है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पेरेंट होगा, तो डबल बॉन्ड को हमें पहले लिखना है, देन ट्रिपल बॉन्ड। And 5 position, 1 2 3 4 5, again 5 position, but we have to consider double bond। तो डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी है। सो क्लियर? तो हाउ टू राइट इट्स नेम? 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन। हेक्स, हेक्स। अब आपका इन एंड आई, YNE and ENE, तो hex 2 in 5 ion। So clear? What is its name? 2 in and 5 ion। So if double bond is present, you have to write like this। Now next rule, lowest locant rule। नेक्स्ट रूल आपको क्या देखना है? लोएस्ट लॉकेंट रूल होना चाहिए। लोएस्ट लॉकेंट रूल, तो पोजीशन आपको मेजर करनी है लेफ्ट साइड या राइट साइड, जहां लॉकेंट या उसकी पोजीशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की लोएस्ट हो, तो उस पोजीशन को आपको इंडिकेट करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इन सम केसेस, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इन सम केसेस more than 2 double bonds are, more than 2 double bonds are
डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, लेट्स सी। तो आप पहले तो इनका नाम याद कर लें। जैसे सपोज करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इस सब्स्टिट्यूएंट, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। क्यों बोलेंगे? CH4 में से 2 हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दिया, एक रिप्लेस करते तो मिथाइल होता है, 2 रिप्लेस कर दिया तो क्या नाम हो गया इसका? मिथाइलिन। तो आप इनके नाम याद रख लें, मिथाइलिन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एंड फॉर IIT लेवल क्वेश्चंस। सो मिथाइलिन। नेक्स्ट CH3CH डबल बॉन्ड। सपोज ये सब्स्टिट्यूएंट आपका प्रेजेंट है तो आप क्या नाम लिखेंगे इसका? CH3C2H5 इथाइल होता है, इथेन से इथाइल। और अब क्या नाम होगा? एक और आपने H रिप्लेस कर दिया, इथाइलिडीन। ओके, इथाइलिडीन। इसे आप मिथाइलिडीन भी कह सकते हैं, इथाइलिडीन। क्या नाम होगा इसका? इथाइलिडीन। इथाइलिडीन, because 2 hydrogen is replaced here, so it is called the ethylidene. Next, let's see. If we take an example, HC triple bond C. Okay, एसिटिलीन आपके ने पढ़ा है, तो इसका क्या नाम होगा? एक H आपने रिप्लेस कर दिया, इथाइन, तो इथाइनिल हो गया। क्या नाम होगा इसका? इथाइल। किससे बना है बेटा? एथाइन से, इसलिए इसका नाम है इथाइनिल। इथाइनिल। All are alkyl. Now CH triple bond C. So if we write CH2 double bond CH, double bond CH. Vinyl, very important group. This is very important group. This is called the vinyl and ethynyl also. जिसे हम एथिनिल भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका आपको याद रखना है विनाइल। दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH. नाउ वी टेक एन अनदर एग्जांपल फॉर IPC nomenclature. So let's see. So write down these example of substituent: methylene, ethylidene, ethynyl and ethinyl. So clear? Now we take an example. Let's see. Next example we can take another example, CH2 double bond C. There is more than 2 double bond. CH2 double bond CH, C double bond CH2, C H double bond CH2. First of all, check the valency of carbon. In all case there is 4 bond, 1 2 3 4. So now first rule, select the long continuous carbon chain. ये हमने long continuous carbon chain select कर लिया. ओके, there is 2 double bond. अब आपको नजर आ रहा है यहाँ 2 double bond है. नंबरिंग 1 2 3 1 2 3. नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, नो इशू. तो पोजीशन आपकी 1 2 3, पोजीशन 4 5. If we take 1 2 3 4, there is 4 carbon. 1 2 3 4, 4 carbon. तो आप select the long continuous carbon chain which contain 2 double bond. अब आपका ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो ग्रुप है, वो अब क्या हो गया बेटा? सब्स्टिट्यूएंट है. दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट नाउ. और सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे ऐड करते हैं? आगे लगाते हैं, प्रीफिक्स में लगाते हैं. और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? अभी नाम आपको बताया था, मिथाइलिन. और पोजीशन कौन सी है? 3 पोजीशन. तो क्या नाम हुआ बेटा इसका? 3 मिथाइलिन. So clear? What is its name? 3-methylene. And how many carbon here? Carbon आप बताइए कितने कार्बन है यहाँ? 5 कार्बन है. पोजीशन भी इंडिकेशन करना पड़ेगा. ये आपका 2 पोजीशन, और ये यहाँ पोजीशन इंडिकेशन करो 1 पोजीशन एंड 4 पोजीशन. ओके, एंड 2 पोजीशन एंड 5 पोजीशन. 2 + 5 7.
एंड 4 + 1 5। तो लोएस्ट लॉकेंट रूल लेना है आपको। तो लोएस्ट लॉकेंट रूल भी अप्लाई हो गया आपका इस एग्जांपल में। तो मिथाइलिन हो गया 3 मिथाइलिन, नाम क्या लिखोगे, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट। ओके, अब पोजीशन इंडिकेशन करो 1, दूसरी पोजीशन 4, अब क्या लिखोगे आप, डाई इन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ 2 डबल बॉन्ड है। सो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो मिथाइलिन, इथाइलिल, विनाइल कोई भी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। नाउ इट्स क्लियर। तो आपको नॉमेनक्लेचर कैसे करना है सभी को समझ में आ गया। तो नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।